कानों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین آداب، میں ہوں عبداللہ مدثر۔ اور میں ہوں قادر ملک۔ اردو زبان محبت اور تہذیب کی زبان ہے۔ اس میں اتنی کشش اور جاذبیت ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہر شخص کا دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنی شیرینی ہے کہ ہر فرد اس کو پانی میں گھول کر پینا چاہتا ہے۔ اس میں اتنا خلوص، محبت اور اپنائیت ہے کہ ہر عاشق اپنے اظہار محبت کے لیے الفاظ اردو کا ہی سہارا لیتا ہے۔ اس میں اتنی سادگی اور تاثیر ہے کہ ہر فرد اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جذبات و احساسات کو اظہار کرنے کے لیے اردو الفاظ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اس سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آج جب بچہ گھر سے اسکول جاتا ہے تو وہ خدا حافظ کہنے کے بجائے ٹاٹا بائے بائے کہنے لگا ہے۔ لیکن پھر بھی روزمرہ کی بول چال میں اردو بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ مگر لوگ یہ تمیز نہیں کر پاتے جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ کس زبان کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اردو کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس طرح عمارتوں کی عمارت تاج محل ہے، اسی طرح زبانوں کی زبان اردو زبان ہے۔ تو ناظرین، پیش ہے الفاظ اردو کی کہانی ایک اہل خانہ کی زبانی، جس میں ایک لڑکا اردو سے نابلد اور نا آشنا ہے۔ وہ اردو سیکھنا چاہتا ہے، اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پروگرام الفاظ اردو۔ ارے دادا جان آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جان مربع مربع تشریف رکھیے دادا جان۔ عامر، جب باہر سے کوئی آتا ہے تو اسے مربع نہیں بلکہ اسے مرحبا کہا جاتا ہے۔ سمجھ گیا، بیٹھیے اب۔ مرحبا یعنی آپ آئے، خوش آمدید، آپ کا یہاں آنا باعث خیر و برکت ہے۔ یو آر ویلکم، سمجھے نا؟ ہاں اچھا، ویلکم کو مربع کہتے ہیں؟ نہیں جناب، مرحبا 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 کہتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا تو دادا جان، حیدرآباد میں آپ کا تام جام کہاں رہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ حیدرآباد میں آپ کے کھانے کا اور سونے کا انتظام کہاں رہا؟ مطلب آپ کے کہنے کا ہے کہ تام و قیام، تام کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا اور قیام کا مطلب ہے رہنا سہنا بسنا۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں حیدرآباد میں کہاں رہتا بستا تھا، کیا کھاتا پیتا تھا، ہے نا؟ تو تام جام نہیں، سمجھے نا؟ تام و قیام، تام و قیام۔ سمجھ گیا۔ دادا جان جی میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ اچھا، تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ فیل ہو گئی؟ نہیں دادا جان، اچھا آپ کو سن کر خوشی ہوگی، جی۔ میں اس بار پورے کالج میں اول آئی ہوں۔ اوہو، تو مطلب یہ کہ آپ کو ایک گولڈ میڈل اور ملے گا۔ اب دیکھو نا عامر، ہمارے ملک نے کامن ویلتھ گیمز میں 38 گولڈ میڈل لیے ہیں۔ اب لیجیے صاحب 39واں گولڈ میڈل حاضر ہے نا بھائی؟ تو بھائی مبارک مبارک، شاباش شاباش۔ شکریہ دادا جان۔ دادا جان مبارک سیکنڈ اور شاباش تھرڈ آئے، سارا فرسٹ آئی ہے، فرسٹ۔ اوہو، کوئی مبارک پھر سے اور شاباش پھر سے آپ کو۔ دیکھو عامر، میں سارا کی ہم جماعت مبارک اور شاباش کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں انہیں کانگریچولیٹ کر رہا تھا۔ اچھا دادا جان، جی تو آپ ان کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے؟ جی جی۔ ارے ہاں دادا جان، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا، آپ سے پہلے آپ سے ملنے کے لیے آفتاب چاچو آئے تھے۔ اچھا، اور جاتے وقت پتہ ہم نے کیا کہا؟ اہل خانہ کو سلام کہہ گئے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اہل کھانا؟ ہاں، اہل خانہ کو سلام کہہ گئے۔ بھائی دیکھو عامر، میں سمجھتا ہوں تمہارے ذہن پہ تمہیں بھوک لگی ہے، شاید کھانا ہی کھانا ہے تو لگتی ہے نا دادا جان۔ تو یہ ایسا ہے کہ کھانا، اس سے پہلے تم نے تام و قیام کھانے کی بات کری، اب پھر کھانے کی بات آ گئی۔ اصل میں کھانا نہیں، اہل کھانا نہیں، انہوں نے کہا اہل خانہ،
اہل خانہ خے سے خیر ہاں، سے اہل خانہ یعنی دادا۔ گھر والوں کو، جس میں آپ ہیں، سارا ہے اور ہم ہیں، ہم سب شامل ہیں، تو انہوں نے ہم سب کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے. مطلب گھر میں رہنے والے لوگوں کو اہل خانہ کہتے ہیں. دیٹس رائٹ، بالکل ہاں، جی، سمجھ بالکل گیا صحیح ہے بات. جی تو آپ نے ان کا استقبال ٹھیک سے کیا؟ دادا جان آپ بھی نا حد کرتے ہیں. میں نے استقبال چاچو کے بارے میں نہیں کہا، میں نے کہا آفتاب چاچو آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے. اچھا اچھا اچھا، دیکھو بیٹا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے استقبال کیا کہ نہیں. ان کا استقبال کا مطلب خیر مقدم کرنا، ان کو ویلکم کرنا. اچھا، تو استقبال کا مطلب ویلکم ہوتا ہے. ویلکم ویلکم. ہاں سر دادا جان کیا. دادا جان، جی عام لوگوں کا کہنا ہے کہ اسمبلی الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں گے. عام لوگوں کا کہنا ہے دادا جان اسمبلی الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں گے، تو لیچی لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ دادا جان دیکھیے، یہ آم اور لیچی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں عین سے عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو عوام یا جنتا کہتے ہیں. بول تو ایسے رہی ہو سارا جیسے تم بڑی اردو جاننے والی ہو. دیکھو بیٹا، مجھے اس وقت قرآن مجید کا ایک چھوٹی سی آیت یاد آ رہی ہے. وَكُلُّهُمْ أَنفُسُهُمْ فِي قَوْلٍ بَلِيغٍ. قرآن کہتا ہے کہ بھائی ایسی بات کہو جس میں بلاغت ہو، جو بلیغ ہو. بلیغ کیا ہوتا ہے؟ بلیغ کا مطلب ہے کہ بلیغ کا مطلب ہے کہ بات مکمل ہو، بات ادھوری نہ ہو، اور ادھوری ہونے سے بڑے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن، ترسیل و ابلاغ جسے کہتے ہیں، تو اس میں بات کو مکمل طریقے سے کہنا چاہیے، ورنہ سننے والے کو یا دیکھنے والے پر اثر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جی میں یاد رکھوں گا یہ بات دادا جان. جی تو اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ہمشیرہ سے اردو سیکھیے، یہ بہت اچھے عالم ہے اردو کی. کیا دادا جان آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کسی ہمشیرہ کو نہیں جانتا ہوں دادا جان. کیا کہا؟ تو پھر میں کون ہوں؟ میں ہی تو تمہاری ہمشیرہ ہوں. سارا، ابو نے تمہارا نام سارا تو رکھا ہے، تم ہمشیرہ کب سے ہو گئے؟ ارے دیکھو بیٹے عامر، تم کو اردو سیکھنی ہے نا، جی سیکھنی تو ہے. اردو سیکھنی ہے تو بہت سے الفاظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے بھی کہا خوش دامن، خوش دامن، جیسا اسی طرح سے یہ لفظ آ گیا ہمشیرہ. ہمشیرہ مانے بہن. یہ آپ کی بڑی بہن ہے، یہ آپ سارا میری ہمشیرہ ہے. کی بڑی بہن. بڑی بہن، جی، اور سمجھ گیا. اس طرح عزت کیا کرو تم. سمجھ گیا. سمجھ گئے نا؟ ہاں. دادا جان میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے نا کہ میں کیسے سیکھ پاؤں گا. بھائی دیکھو عامر، اردو زبان بڑی خوبصورت زبان ہے. جی دادا جان. اس زبان کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اس میں اخبار ہیں، رسالے ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہیں. ان کو پڑھتے رہو تو اس طرح سے آپ کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بلیک مارکیٹرز ہیں، کالا بازاری کرتے ہیں، تو شکر جمع کر لی، گیہوں جب، تو وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں ذخیرے کی، وہ ادب کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اس طرح سے آپ جب پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، رسالے پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کے پاس، آپ کے ذہن و دماغ میں الفاظ کا ایک الفاظ سارے ان کا ذخیرہ اکٹھے ہو جائیں گے الفاظ، اور آپ بہت اچھی طریقے سے ان الفاظ کو بات چیت کے دوران استعمال کر سکیں گے. یہ مطلب ہے میرا. اس سے آپ کی گفتگو میں، آپ کی روزمرہ کی باتوں میں نکھار پیدا ہوگا. نکھار؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نکھار کہاں سے پیدا ہوگا دادا جان؟ یہ تم نے خوب کہا. ارے دادا جان، میں تو چلتی ہوں. اچھا، اب آپ ہی اس کو سمجھائیے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کالج جانا ہے. لو بھائی، سارا تو چلی گئی. جی دادا جی. پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکھار پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں ایک طرح کی رونق آ جائے گی، اور آپ اس سے ایک ذخیرہ ہو جائے گا جب آپ کا، تو آپ اردو دنیا میں مقبول ہو جاؤ گے. اردو دنیا؟ دادا جان یہ اردو دنیا کیا ہے؟ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو تو میں جانتا ہوں،
और मेरा नाम मकबूल कैसे हो जाएगा? मैं तो आमिर हूँ। भाई तुमको मैं बताता हूँ कि ये उर्दू दुनिया की जो बात तुमने कही है ना, तो उर्दू दुनिया है क्या? ये एक तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। जैसे मैं कहूँ कि साहब उर्दू में शायर हैं, उर्दू में ड्रामा निगार हैं, उर्दू में अफसाना नवीस, ये सब लोगों से मिलकर एक माहौल उर्दू का जो पैदा होता है उसे उर्दू दुनिया कहते हैं। आप मकबूल हो जाएंगे, यानी आपकी शोहरत हो जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, दुनिया में लोग आपको जानने लगेंगे, और अच्छी ज़बान जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका शोहरा, आपकी शोहरत हो जाएगी। समझे आमिर? जी हाँ, मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। दैट इज़ राइट। तब तो मैं दादा जान जरूर कोशिश करूंगा। अरे क्या कहा? जरूर? अरे भाई ज़बान को ठीक से इस्तेमाल करो। जरूर लफ्ज़ नहीं होता है, लफ्ज़ होता है ज़रूर। ज़बान का सही तलफ़ुज़ आना चाहिए, समझे ना आप? वो तो मैं ठीक कर लूंगा, पर दादा जान ये बताइए ये तलफ़ुज़ क्या होता है? भाई अब मैं कहूँ तो तलफ़ुज़ का मतलब होता है, अंग्रेज़ी में कहूँ तो प्रोनाउंसिएशन, या हिंदी में कहेंगे इसको उच्चारण। तो तलफ़ुज़ अपना सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए तलफ़ुज़। जब बोलें आप तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो कुछ बात कहें तो सही उच्चारण से, सही तलफ़ुज़ से कहें, वरना सुनने वाला वो हंसेगा आप पर, है ना? समझ गया। दादा जान थैंक यू, मैं समझ गया। ओह थैंक यू, क्या मतलब होता है इसका थैंक यू? इसको भाई उर्दू में कहो ना, क्या कहोगे? क्या? शुक्रिया कहो, शुक्रिया आपका दादा जान। सॉरी दादा जान, आज से शुक्रिया ही कहूँगा। अब ये थैंक यू के बाद दूसरा लफ्ज़ आ गया सॉरी। अरे भाई सॉरी की जगह को माफ़ कीजिए जनाब। ओके दादा जान, आज से सिर्फ उर्दू के ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा। के बाद दीगरे, पहले थैंक यू आ गया, फिर सॉरी आ गया, फिर ओके आ गया, इसके पता नहीं क्या कहने वाले हो। तो भैया देखो, ओके का मतलब क्या होता है कि ठीक है, जो कुछ आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, मैं इन बातों पर चलूँगा और उर्दू में ठीक से सीखने की कोशिश करूँगा। समझे ना आप? समझ गया दादा जान। आज के बाद से मैं ना ओके यूज़ करूँगा, ना थैंक यू यूज़ करूँगा और ना सॉरी यूज़ करूँगा, बल्कि ठीक है, माफ़ कीजिए और शुक्रिया यूज़ करूँगा। शाबाश भाई, बड़ी अच्छी बात है। अपनी ज़बान को इस तरह से आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हाँ दादा जान, मुझे उर्दू सीखने की बड़ी जल्दी है, लेकिन अभी मुझे जल्दी है जाने की, क्योंकि मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आप आराम कीजिए तब तक, शाम को अच्छा भाई, सारा गई और तुम भी चले? जी दादा जान, देर हो रही है, अब मैं टेक केयर, आहिस्ता जाओ। आराम कीजिए आप। हाँ, अल्लाह हाफिज़, शाम को अल्लाह मिलते हैं। हाफिज़। तेरा सनम एक रज़ाई सी है, मेरे दिल जिस्म जा पे तो चाइज़ है। तेरा चेहरा सनम एक रज़ाई सी है, मेरे दिल जिस्म जा पे तो चाइज़ सी है। तेरा चेहरा सनम एक रज़ाई सी। ये रज़ाई रज़ाई क्या गा रहे हो? अरे वही तो गा रहा हूँ जो बोल हैं गाने के। वो लफ्ज़ रज़ाई नहीं है, बल्कि वो लफ्ज़ रुबाई है। रुसवाई? रुसवाई नहीं भाई, रोबाई। रोबाई? ये रोबाई किस चिड़िया का नाम है? बैठो बताती हूँ। रुबाई शायरी की एक किस्म है, जैसे नज़म, गज़ल। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। अच्छा, तो समझ गया, एक रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। आजकल आप शकीरा और माइकल जैक्सन के गानों की जगह बॉलीवुड के गाने सुनने लगे हो। हाँ सारा, मैं अपनी उर्दू पे आजकल ना ध्यान देने लगा, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है। घबराओ मत, हिम्मत रखो हिम्मत। दादाजी से उर्दू सीखते रहो और मैं भी हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी। ये हाथी का इम्कान कहाँ से आ गया? हाथी का इम्कान नहीं, हत्तल इम्कान, ये- जिसका मतलब
जिस हद तक हो सके मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया शुक्रिया सारा। सारा मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया, आज मुझे दोपहर में एक SMS मिला था, पढ़ने में बड़ा लुत्फ आया, पर 2 वर्ड इसके मुझे समझ में नहीं आए। तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ, तुम समझा दो। सुनाओ। ये खुशबू ये हवा आपके नाम कर दी, मौसम की हर अदा आपके नाम कर दी, वाह। दिल ने चाहा कि खुश खास तोहफा दूं आपको, इसलिए दिल से निकलने वाली हर दुआ आपके नाम कर दी। SMS तो मुझे भी ये ठीक ही लगा, बट इसमें मुझे ये अदा और ख़ास तोहफा समझ में नहीं आया, ये क्या होता है? अदा स्टाइल को कहते हैं और ख़ास तोहफा स्पेशल गिफ्ट को कहते हैं। अदा माने स्टाइल और स्पेशल गिफ्ट माने ख़ास तोहफा, समझ गया। हाँ सारा, मैं तो एक बात पूछना ही भूल गया, वो मुगल आजम मूवी में वो एक डायलॉग है ना, जिल्लत इलाही का एक बाल बुलंद हो, वो एक बाल बुलंद हो क्यों बोल रहे हैं? पूरे बाल भी बुलंद हो सकते हैं ना, वो भी तो बोल सकते हैं। बुद्धू, इस मकालमे में जिल्लत इलाही का एक बाल बुलंद हो नहीं कहा गया है, बल्कि जिल्ले इलाही का एक बाल बुलंद हो कहा गया है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह का साया, यानी बादशाह पर अल्लाह का साया होता है, और इकबाल बुलंद होने से मुराद बादशाह की किस्मत बुलंद हो। अब ये फिल्मों की बातें ख़त्म करो, आज का अखबार पढ़कर सुनाओ। तुम सारा मुझे आज का अखबार पढ़ने के लिए बोल रही हो? देखो ये उर्दू अखबार वाले ना, इनको खुद पता नहीं कि क्या उर्दू लिखते हैं। देखो क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोयला कान में 3 मजदूरों की मौत। इंसानों के कान तो सुने थे, जानवरों के कान भी सुने थे, ये कोयले के कान कहाँ से आ गए? बुद्धू बेवकूफ़, ये इस कान के बारे में नहीं लिखा है। माइन को उर्दू में कान कहते हैं। मतलब कोल माइन, कोल माइन को उर्दू में इसीलिए कान कहती कहते हैं। हूँ उर्दू अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ने से तुम्हारी उर्दू दुरुस्त हो जाएगी। हाँ सारा, तुम्हें पता है मैंने आज अपनी उर्दू सुधारने के लिए ना बाजार से एक कुत्ता बच्चा खरीदा है। कुत्ता बच्चा? कहाँ है कुत्ता बच्चा? अलमीरे में रखा हुआ है। अलमीरे में? हाँ, लेकर आओ। अभी लाता हूँ। क्या सच में इस बेवकूफ़ ने किताब की अलमारी में कुत्ते का पिल्ला रख दिया है? देखो। अरे तुम तो सच में बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो। इसको कुत्ता बच्चा नहीं कहते, इसको किताबचा कहते हैं। वही तो मैं भी कहता हूँ, कुत्ताबचा। कुत्ता बच्चा का है कुत्ता बच्चा, किताबचा यानी छोटी किताब। अच्छा 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 अच्छा। तुम इस किताबचा को पढ़ो, मैं अम्मी का हाथ बटाने जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। अस्सलामुअलैकुम दादा जान। क्या कहा? अस्सलामुअलैकुम। बैठो। ये सलाम अलैकुम क्या चीज़ होती है? देखो, सलाम अलैकुम का मतलब क्या होता है पता है? सलाम अलैकुम माने लान तान, बद्दुआ के मानों में होता है सलाम अलैकुम। तुम्हें कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम को। अस्सलामु अलैकुम मतलब ये है कि आप पर खुदा की रहमत हो, समझे क्या नहीं? जी दादा जान। सलाम अलैकुम नहीं। अस्सलाम अलैकुम नहीं कहूँगा। अच्छा आमिर, इस बार इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? जान मैं तो आपको कहना ही भूल गया, आज हमारे कॉलेज में ना सालाना तकरीब थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। जरा फिर से कहो, क्या कहा? तकरीब? सालाना तकरीब। देखो बेटे,
तकरीब के माना होते हैं बर्बादी। बर्बादी? जी, वो लफ्ज़ तकरीब नहीं बल्कि तकरीब है, काफ से, खै से नहीं, काफ से, तकरीब। तकरीब। कोई पार्टी, कोई रस्म, तकरीब थी। तो कॉलेज में आपके तकरीब थी, कौन कौन लोग वहाँ आए थे? हमारे कॉलेज की तकरीब में ना दादा जान बड़े बड़े डायनासोर आए थे। ओह माय, डायनासोर! हाँ, बड़े बड़े डायनासोर आए थे, बड़े बड़े। अरे भाई, आप जानते हो डायनासोर क्या होता है? आपने कहा तो था ना। मैंने नहीं कहा था है, मैंने तो कहा था दानिश्वर, अक्लमंद लोग, जो जी अक्ल होते हैं जो अक्ल वाले होते हैं, वो लोग जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें दानिश्वर कहते हैं। हाँ दादा जान, समझ गया। दादा जान, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, तकरीब खत्म होने के बाद मुझसे फुरकान सर मिले थे। अच्छा? हाँ, वही प्रिंसिपल सर अपने। वो कह रहे थे कि मैं आपके दादा जान से मिलने के लिए दौलत कदा पे आऊंगा। वो क्या होता है दौलत गदा? दौलत गदा? जी। भाई, तुम हर चीज को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देते हो कि हंसी आती है। देखो आमिर, दौलत गधा नहीं होता, दौलत कदा होता है। दौलत कदा? दौलत कदा माने आपके घर पर, आपके जहाँ आप रहते हैं, उसको दौलत कदा कहते हैं। मतलब इंसान अगर जहाँ आप किसी से कहें कि आप मेरे दौलत कदे पर आइए तो गलत होगा, आपको कहना चाहिए मेरे गरीब खाने पर आइए। दौलत कदा तो दूसरा कहे कि हम आपके दौलत कदे पे आए, तो दौलत गधा नहीं, दौलत कदा। दौलत कदा। जी हाँ जी दादा जान, समझ गया। तो आप उनका जब वो आए तो उनका अच्छे से इस्तकबाल करना। हाँ इंशाल्लाह इसका जरूर ख्याल रखना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो कहाँ हैं आपके अब्बू? मेरे अब्बू हाँ। अंदर मुंह काला कर रहे हैं कमरे में। क्या कर रहे हैं? मुंह काला कर रहे हैं दादा जान। मुंह काला कर रहे हैं? भाई, मेरा ख्याल है कि वो किसी किताब का मुतालिया कर रहे हाँ, हैं। यही तो कहा था ना अरे आपने भाई, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करो सोच समझ के करो, बगैर उसके नहीं करना। अच्छा, वो बताओ सारा कहाँ है? हाँ, अखबार बुन रही है। अखबार बुन रही? ये कोई स्वेटर बुन रही है? अखबार बुनना क्या होता है भाई? अरे, अखबार बीनी कर रही है, यानी अखबार पढ़ रही है। मैंने कहा था अखबार बीनी कर रही है, अखबार बुनना नहीं होता। ये तो स्वेटर बुना जाता है, कोई और चीज़ बुनी जाती है। अखबार बीनी कहना चाहिए। अखबार बीनी? हाँ, अखबार पढ़ना। ठीक है दादा, जी। समझ गया। मैं तो डर ही गया था, आप तो ऐसे देख रहे थे, मैं भाग रहा था। तो देखो, अब सारा आ जाए तो कुछ बात हो, जी। निकलेंगी बात उससे कुछ। अरे सारा, तुम ये आबी जमजम का पानी कहाँ से लेके आई? ये सुनो, आओ बैठो यहाँ। ये इसने आमिर ने एक नई तरकीब निकाली है, आबे जमजम का पानी। जैसे कोई कहे शबे लैलतुल कदर की रात, जैसे कोई कहे शब बरात की रात। लो भाई आमिर, तुम भी एक घूंट ले लो और देखो, खड़े रखो, पियो इसको। आबे जमजम है, इसकी रिस्पेक्ट है। जी दादा जान। एक घूंट से बढ़ के ना लेना, और लोगों के लिए भी छोड़ो। बस ठीक है, लीजिए दादा जान, ये लीजिए। एक ही घूंट पी देखिए। बस ठीक है, आप भी पी लीजिएगा। मैं बाद में पी लूँगी। दादा जान, आमिर की उर्दू सही हुई कि नहीं? मेरा ख्याल है कि आमिर ही बता सकते हैं सही हो रही है कि नहीं हो। ठीक हो रही है। हाँ, दादा जान की मदद से सही हो रही है। और देखो सारा, आप इसको उर्दू इसकी ज़्यादा सही करने के लिए कुछ ज़्यादा सरगर्मी दिखाइए। हाँ दादा जान, इसका तो सर हमेशा ही गर्म रहता है। ऐसी बात है? देखिए दादा जान। देखिए कैसी बात कही उन्होंने। सरगर्मी के मानी होते हैं एक्टिविटी, समझे ना? एक्टिविटी? जी। हाँ, समझ गया दादा जी। तो मेरी बात सुन रहे हो ना ठीक से? हाँ दादा जान, मैं आपकी बात बहुत ध्यान लगा के सुन रहा हूँ। देखो, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ बात के बारे में। दखनी ज़बान के एक शायर हैं, उनका नाम है सुलेमान खतीब। सुलेमान खतीब? बहुत अच्छे शायर हैं। जी दादा जी। उन्होंने एक बात कही है बात के बारे में। वो कहते हैं कि बात हर बात को नहीं कहते, बात हर बात को नहीं कहते, बात
मुश्किल से बात होती है। वाह वाह, बहुत खूब। बात मुश्किल से बात होती है और बात हीरा है, बात मोती है। बात हीरा है, बात मोती है और बात खंजर की काट होती है। अरे वाह दादा जान, आज तो आपने हमें उर्दू के बारे में बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या शेर है दादा जान? ये मेरा शेर नहीं है भाई, ये शेर है सुलेमान खतीब, जिन्होंने दक्षिणी ज़बान में शायरी की है, उनका शेर है। तो बात के बारे में बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। तो ये बात मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उनको आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपकी उर्दू वाकई इम्प्रूव होगी, आप आगे बढ़ सकेंगे। अरे आमिर सुनो, मैं सोच रहा था बहुत दिनों से वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम उसका, शौकत। शौकत? हाँ, वो नहीं आया बहुत दिनों से। दादा जान, मैंने भी सुना है कि वो अमेरिका के लिए हिजरत कर चुका है। हिजरत? हिजरत क्या होता है? देखो बेटा, लफ्ज़ हिजरत नहीं, हिजरत है। क्या है हिजरत? लफ्ज़? हिजरत। जी अब दादा। मैं तुम्हें मुनव्वर राना, एक शायर है, उनका एक शेर सुनाता हूँ इस सुनाइए मौजू दादा पर। जान। मुनव्वर कहते हैं कि ज़रूरत रोज़ हिजरत के लिए आवाज़ देती है। वाह, ज़रूरत रोज़ हिजरत के लिए आवाज़ देती है और मोहब्बत छोड़कर हिंदुस्तान जाने नहीं देती। वाह, वाह वाह, जी जी, बहुत अभी खूब, ये बहुत बात खूब। तो उनको मुनव्वर राना को मिलनी चाहिए, हमें नहीं, लेकिन ये एक सही बात है बिल्कुल। हम लोगों का सबका यही ख्याल है कि मोहब्बत छोड़कर हिंदुस्तान जाने नहीं देती। सारा, तुम उर्दू सीखने के लिए किस किताब का मुताला करती हो? अल्फाज़े उर्दू का जो दादा जान ने लिखी है, तुम भी उसी का मुताला करो। लो भाई आमिर, ये किताब। शुक्रिया दादा जान। दादा जान, मैं आपसे एक बात कहूँ, इस किताब का मैं मुताला करूँगा और उर्दू की दुनिया में मकबूल होके एक अच्छा दानिश्वर बनूंगा। ओहो, तो अपने सारे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, मकबूल और दानिश्वर और मुतालिया। बड़ी खुशी की बात है कि देखिए कितनी जल्दी उर्दू सीख गए सारा जी दादा जान। और आमिर। एक बात कहना चाहता हूँ कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, गुफ्तगू बहरे मुलाकात चले, गुफ्तगू सुबह चले, शाम चले, रात चले, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले। नाजरीन, आपने देखा आमिर किस तरह लगन व जुस्तजू से उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी उर्दू सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम अल्फाज़ उर्दू से अपनी उर्दू बेहतर कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम अल्फाज़ उर्दू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बखैर।